السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین و مسلمن و بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ بزرگ اور دوستو اسلامی بھائیوں، آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت کے سلسلے میں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن اور 10 راتیں، یہ نہایت اہم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ اسی عشرہ میں وہ رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت میں محنت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے ہوئے سچے دل سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ یہ عشرہ نہایت ہی بابرکت ہے، خیر اور برکت سے بھرا ہوا ہے۔ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، رواہ البخاری، حدیث نمبر 2024۔ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت کرنے میں خوب محنت کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے جو دوسرے عشرے میں نہیں کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، اور یہ تمام عبادتوں میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، تسبیح و تحلیل بھی کرتے تھے، اور صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادتوں میں آپ محنت کرتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، اسی عشرے میں اعتکاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 20 دن اعتکاف کیے۔ تو بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت ہی اہم ہے اور بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے، تو آپ تصور کیجئے اور آپ سمجھیے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, जिब्रील अमीन आते हैं, अल्लाह का हर हुक्म लेकर के आते हैं, रहमत के साथ उतरते हैं फरिश्ते, और साल भर के फैसले हो जाते हैं इस रात में। ये रात सलामती वाली रात है, शर और फसाद नहीं है इस रात में, और मखलूक के लिए कोई बुराई नहीं है इस रात में। रात भर सलामती वाली है, हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक के सुबह हो जाती है, फजर तुलू हो जाता है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में क़याम करता है, तहज्जुद पढ़ता है, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स लैलतुल क़द्र को क़याम करता है, तहज्जुद पढ़ता है, शब क़द्र में जागता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तस्बीह व तहलील करता है, दुआएं करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता है। मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन, जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, ईमान रखते हुए, सवाब की उम्मीद रखते हुए, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, इस रात की खैर व बरकत से हमें महरूम नहीं रहना चाहिए। कितनी ही रातें हम गुजार देते हैं दोस्तों के साथ बैठकर, मीटिंगों में बातें करके, और शादियों में कभी जा करके, और तरह तरह के कामों में हम कितनी ही रातें गुजार देते हैं। ये 5 रातें जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, जिसमें लैलतुल क़द्र आता है, ये लैलतुल क़द्र कब तलाश करना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आता है, लेकिन ये कौन सी रात आती है ये मुझे भुला दिया गया। अल्लाह ताला ने मुझे बताया था, लेकिन फिर मुझे भुला दिया गया। अब तुम लैलतुल क़द्र तलाश करो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, और इसको तुम तलाश करो ताक रातों में। फ़ब्तगूहा फ़िल अश्रिल अवाख़िर वब्तगूहा फ़ी कुल्लि वित्रिन। बुखारी हदीस नंबर 2016। लैलतुल क़द्र तुम तलाश करो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, और आखिरी अशरे के ताक रातों में, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रात में। तो आखिरी अशरे के ताक रातों में हमें ये रात तलाश करनी चाहिए, और इसकी फजीलत और इसकी बरकत और इसकी सआदत से महरूम नहीं रहना चाहिए। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस रात की भलाई से महरूम रह गया, इस रात की खैर व बरकत से जो महरूम रह गया, वो हर भलाई से महरूम रह गया। ये हदीस इब्न माजा की हदीस नंबर 644। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की बदनसीबी बयान की कि जो इस रात की बरकत से, इस रात की खैर और भलाई से जो महरूम रह गया, वो हर भलाई से महरूम रह गया। तो हम क्या साल में से इतनी सारी रातें होती हैं, 360 या 365 रातें, उसमें से ये 5 रात अल्लाह के लिए नहीं देना चाहेंगे? क्या हमें ये पसंद नहीं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं? क्या हमें ये पसंद नहीं कि हमें 1000 महीनों की इबादत से बेहतर सवाब मिल जाए? तो गोया के जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में इबादत किया और उसको लैलतुल क़द्र नसीब हो गया, उसने 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत किया। एक आदमी 1000 महीना इबादत करेगा, 83 साल 4 महीना इबादत करेगा, और एक आदमी लैलतुल क़द्र में इबादत करेगा, तो लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीने से बेहतर है, 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर है। एक रात तो हमें ज़रूर ये एक रात अल्लाह के लिए ज़रूर देनी चाहिए। हमारे गुनाहें कितने ज़्यादा हैं, हमारी ख़ताएँ कितनी ज़्यादा हैं, हमारी लग़्ज़िशें कितनी ज़्यादा हैं, इन सब को माफ़ करने के लिए, इन सब की बख्शिश के लिए हमें चाहिए कि हम इस रात को गनीमत समझें और इसकी बरकत से, इसकी सआदत से महरूम न रहें। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, इस रात में जो खुसूसियत है वो ये है, इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं रहमत के साथ, साल भर के फैसले होते हैं। ये सलामती वाली रात है, 1000 महीनों से बेहतर है, और उस आदमी की बख्शिश हो जाती है जो उस रात में क़याम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। और आखिरी हदीस, इस्लामी भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाहि हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़र'i
वला यज्तमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाह व दुखानु जहन्नम। तिरमिज़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से रोया यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से रोता है। इसी तरह जिस तरह दूध को थन से निकालने के बाद वो दूध फिर वापस थन में नहीं जाता है, और अल्लाह की राह में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धुआं एक साथ जमा नहीं होगा, यानी जो जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए जाते हैं वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा। तो इस रात में हमें चाहिए कि हम तन्हाई में मुसल्ला उठाएं, अल्लाह के लिए खड़े हो जाएं, हम नमाज पढ़ें और उसमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें। और ये हदीस भी जिसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, वो आदमी जो खाली जगह में तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, वो बहुत खुश नसीब है, वो क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में वो जगह पाएगा। तो बुजुर्ग और दोस्तों इस्लाम भाइयों, आखिरी अशरा हमसे रुखसत होने वाला है। ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा हमसे रुखसत होने वाला है और बहुत सारी भलाइयों के साथ ये वापस जाने वाला है। हम जितना चाहें ये भलाई समेट लें, जमा कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इबादत करें और सदका व खैरात करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए, आपके तरीके पर चलते हुए हम अपने वक्त को ज़ाया ना करें। बहुत सारे लोग शॉपिंग में ये रातें गुजार देते हैं, बहुत सारे लोग खाने पीने में और दावतों में ये रातें गुजार देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही सो करके गुजार देते हैं, खेल कूद में गुजार देते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों इस्लाम भाइयों, आने वाली मौत के बाद की अंधेरी बहुत ख़तरनाक है, मौत के बाद आने वाला सफ़र और रास्ता बहुत पुरखतर है। इसलिए मौत के बाद के लिए हमें रोशनी जमा करनी चाहिए, मौत के बाद के लिए हमें तोशा तैयार कर लेना चाहिए। कब्र की ज़िंदगी के लिए हमें इसी दुनिया में नेकियां और भलाइयां समेट लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, नेकियों को कबूल फरमाए, कोरोना वायरस की बीमारी को अल्लाह हमसे दूर फरमाए, जो इसमें मुब्तला अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे, और जो अभी इस बीमारी से बचे हुए हैं अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।